हेलो बच्चों, नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. नाउ वी हैव स्टडीड indefinite integration and now we are going to study definite integration. अभी दोनों में फर्क क्या है? We will see that. Before we proceed further, I want to tell you very loudly and clearly कि chapter of integration, indefinite integration, there are various videos 1A, 1B, 2A, 2B, 2C like that. Please study those videos carefully and please by heart the formulae which I have been telling you from time to time. Then only you will be able to understand this chapter of definite integration. समझ गए बच्चों? Agree with me? चलो. Now in this part, which is part 1A, we will study the basic concept and we will see the introduction of definite integration. बहुत ही सिंपल चैप्टर है if you know the integration, indefinite integration properly. So definite integration. Now this chapter we are going to study in 5 parts. See, all my videos, chapter wise videos, I have tried to divide into small videos and group them into part 1, part 2, part 3 like this. For example, if you see indefinite integration, part 1, there will be videos like 1A, 1B. Part 2, there will be videos like 2A, 2B, 2C. क्योंकि it is always better to split the chapter into smaller parts and then study. There is no point in making a video of 2 hours because after 20 minutes you will start feeling sleepy. तो ये मेरे सब वीडियो छोटे हैं and it is basically for understanding the subject right from basic principles. समझ गए? तो अभी ये चैप्टर जो है, जैसा हमने indefinite integration अलग अलग पार्ट में स्टडी किया है, वैसा ही ये स्टडी करेंगे. Now, in first part, we will see the introduction of definite integration and I will explain you the basic concepts of definite integration. Then part 2, we will see properties of definite integration. There are around 8 properties which are useful in solving the example. समझ गए बच्चों? There are 8 properties for solving the examples. Then we will see the proof of some important property. Because sometimes in examination, especially in Maharashtra board, they ask to prove certain property. समझ गए? So that also we will see. Then we will solve typical examples based on the properties. अभी ये properties तो आना मांगता है हमें and indefinite integration की various जो methodologies है वो भी आना मांगता है. And in part 5, we will take more complex examples. समझ गए? Okay? चलो. Now in this video, I have tried to summarize our indefinite integration chapter for your ready reference. So, these are the fundamental formulae, elementary formulae of indefinite integration, which you must know. अगर आपने स्टडी अच्छी तरह से नहीं किया है तो एक बार ये लिख के जरा रिवाइज कीजिए, बाय हार्ट कीजिए. दीज आर एडिशनल फॉर्मूले, tan x, cot x, sec x, cosec x. देन दीज आर द रूल्स. f dash x अपॉन fx, इसका इंटीग्रेशन log fx मिलता है. मतलब इफ देयर इज अ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर
and derivative of the same function in numerator, simply we can say log fx. Now these rules we have seen in detail, so I don't want to spend time more on this. These are special type of integration. There are 7 formulae. We have also derived these formulae and solved examples based on this. So these are 4 formulae and these are remaining 3 formulae. ठीक है, चलो अभी हम लोग चालू करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन. अभी पहला जो चैप्टर था बच्चों, इसके पहले का, इट वाज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. मतलब what was the chapter? Indefinite integration. Now what was that? For example, integral x raised to 2 dx. How we used to write? We have a formula x raised to n plus 1 upon n plus 1. So we used to write x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. Plus we used to write constant of integration. So answer would have been x raised to 3 upon 3 plus c. Now what is this c? This is the constant of integration. समझ गए? बिकॉज क्या है कंसेप्ट, क्या है, ये राइट हैंड साइड का आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो यू विल गेट दिस. समझ गए? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो मैं यहां 2 करोड़ भी लिखेगा उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. सो दिस सी कैन हैव एनी रियल वैल्यू. समझ गए? इट कैन बी √2, इट कैन बी 100, इट कैन बी -20, एनीथिंग इट कैन बी. समझ गए? So this is what is indefinite integration, for which we have made many videos, and it is a big chapter and I have been telling you to study that properly. Now if there is something like indefinite, now we have something like definite. Now what is that definite? Let me explain you in a very simple terms, not like textbook. Integral a to b fx if it is gx, not like that. Integral x square dx. ये तो indefinite हो गया. Now I write some limits to that. Means what? Let us say I write from 1 to 3. तो ये हो गया डेफिनेट. यहां कुछ नीचे लिखा है क्या? इधर नहीं. ऊपर कुछ लिखा है क्या? नहीं. सो दिस इज इनडेफिनेट. तो ये 1 हो गया लोअर लिमिट एंड ये 3 हो गया अपर लिमिट. तो इसका सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग बच्चों? वेरी सिंपल. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? एक्स क्यूब अपॉन 3. अभी यहां डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता है, बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक लिमिट. तो यहां लिखा 1, यहां लिखा 3. अभी क्या करते हैं हम लोग? देखो, x का वैल्यू फर्स्ट वी पुट अपर लिमिट. व्हाट इज दैट? 3 रेज टू 3 डिवाइडेड बाय 3. यहां तो लकीली और बाय एग्जाम्पल इट हैज कम 3, बट ये 3 क्या है? ये 3 हमने x का वैल्यू 3 डाला है. ब्रैकेट माइनस x का वैल्यू क्या डालेंगे बच्चों? लोअर लिमिट का वैल्यू, दैट इज 1 रेज टू 3 अपॉन 3. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 27 अपॉन 3, 9.
माइनस 1/3 इज 1, तो ये 3 ऐसा ही रहेगा 1/3। तो ये हमने वैल्यू निकाला, कॉमन डिनोमिनेटर इज 3, 27 माइनस 1, तो आंसर कितना आया इसका 26/3। तो ये इस एग्जाम्पल का एक्चुअल वैल्यू आ गया, समझ गए। यहां इनडेफिनेट में द आंसर वाज इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन, यहां क्या आ गया अपने को वैल्यू आ गया, समझ गए बच्चों। चलो अभी मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूं एंड देन योर कंसेप्ट विल बी मोर क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल, मीन्स कुछ भी इंटीग्रेशन का एग्जांपल है उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहेगा, समझ गए बच्चों। चलो वन मोर एग्जांपल, अच्छी तरह से देखो। इंटीग्रेशन 0 to 1 x raised to 2 dx। मैं पर्पसली सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। अभी एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों, x³ अपॉन 3, समझ गए। और लिमिट कितना है, नीचे वाला 0, ऊपर वाला 1। तो पहले मैं वैल्यू x का कितना डालूंगा 1, सो 1³ अपॉन 3। ये ब्रैकेट एग्जाम्पल में केयरफुली यूज करो, माइनस साइन केयरफुली यूज करो, दिस साइन विल बी ऑलवेज माइनस। अपर लिमिट का वैल्यू डाला माइनस, लोअर लिमिट का वैल्यू कितना है 0³ अपॉन 3। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1³ इज 1, 1/3 माइनस ये तो 0 हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो गया 1/3, समझ गए। चलो नाउ आई विल टेल यू समथिंग डिफरेंट। अभी यही एग्जांपल इंटीग्रल 0 to 1 t² dt। अभी ये एग्जांपल x में है क्या, नहीं है, t में है ना। जैसा x² का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज s³ अपॉन 3, वैसा ही t² का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी t³ अपॉन 3। और t क्या वैल्यू ले रहा है, ऐसा ही 0 to 1। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, 1³ बराबर है अपॉन 3 माइनस 0³ अपॉन 3। तो इट विल बी सेम 1/3 माइनस 0, सो इट इज 1/3। तो अगर ये फंक्शन सेम है, whether I use x or whether I use any other letter, it will be same, the value will be same, समझ गए बच्चों। तो हमें पहला सिंपल रूल क्या मिल गया, देखो एक बहुत ही सिंपल रूल मिल गया। क्या सिंपल रूल मिल गया हमें, सपोज आई राइट इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x with respect to x from a to b, और यहां मैं लिखा इंटीग्रल फंक्शन ऑफ t। अभी यहां f(x) है, यहां f(t) है, मतलब दोनों का फंक्शन सेम है। अगर यहां sin x है तो ये sin t है, यहां x⁵ है तो यहां t⁵ है with respect to t, and if limits are same a to b, a will have some value 0, 1, 2, 3, π/2 anything, b will have some another value 3, 4, -2, -π/2 like that।
तो ये दोनों इक्वल रहता है बच्चों। यही तो हमने यहां प्रूव किया कि यहां फंक्शन वॉज एक्स स्क्वायर, यहां फंक्शन वॉज टी स्क्वायर, मतलब सेम था। लिमिट यहां 0 था, यहां 0 था, ऊपर वाला वहां 1 था, यहां 1 था। दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू टी। दोनों का आंसर हमें 1/3 मिल गया था, मतलब दोनों इक्वल था। दैट इज द सिंपल रूल आई हैव ट्राइड टू गिव यू हियर। समझ गए बच्चों? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू। क्या बताऊंगा मैं? चलो, नाउ लेट अस सी with example. Instead of telling you theory, better to see practical example so you will understand. I say integration x raised to 4 dx from 2 to 2. समझ गए बच्चों? अपर लिमिट भी 2 है, लोअर लिमिट भी 2 है। चलो ये देखेंगे क्या आता है। x रेज टू 4 का इंटीग्रल x रेज टू 5/5, ये तो याद है, हमने सिंपल एग्जांपल लिया है। लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 2। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां कहीं भी नहीं रहेगा। तो पहला में ये 2 डालेगा तो क्या होएगा? 2 रेज टू 5/5 माइनस, अभी मैं कौन सा 2 डालेगा? ये रेड वाला 2 डालेगा, ये रेड वाला 2, लोअर लिमिट 2 रेज टू 5/5। अभी ये क्या है? सेम है, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो मुझे और एक रूल, कितना सिंपल प्रॉपर्टी मिल गया। इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, integral of any function if lower limit is same, if lower limit is a and upper limit is also a। लोअर लिमिट कितना है? a, यहां 2 था, अपर लिमिट भी उतना ही है, तो इसका वैल्यू स्ट्रेट वे मुझे 0 मिल जाता है। तो ये मुझे दूसरा प्रॉपर्टी मिल गया। समझ गए बच्चों? ये हम खाली इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और सिंपल प्रॉपर्टीज आई एम ट्राइंग टू टेल यू जस्ट बाय गिविंग सिंपल एग्जांपल्स। अभी देखिए, मैं और एक एग्जांपल करूंगा, दैट विल बी नथिंग बट अवर प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या एग्जांपल है देखेंगे? चलो, नो, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। पहले वाला हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 था। अभी देखेंगे, अभी मैं एक एग्जांपल सॉल्व करेगा ना, आपको बहुत मजा आएगा। चलो, क्या एग्जांपल है? आई से इंटीग्रेशन x dx फ्रॉम 1 to 3। आएगा करने को? बहुत ही सिंपल है। x का इंटीग्रल x²/2, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 3। पहला अपर लिमिट डालने का, सो 3²/2 माइनस, अभी लोअर लिमिट है 1, 1²/2, तो दिस इज 9/2 बराबर है, माइनस 1/2, सो दिस इज 8/2 एंड दैट इज नथिंग बट 4। समझ गए बच्चों? चलो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो, मैं थोड़ा आइडिया कर रहा हूं। सेम फंक्शन इंटीग्रल x dx, सेम लिमिट्स, अपर को मैं लोअर बनाएगा, लोअर को अपर बनाएगा, तो 3:1। समझ गए क्या किया मैं? सेम फंक्शन आई हैव टेकन,
नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ग्राउंड फ्लोर वाले को फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर वाले को नीचे। तो यहां तो इंटीग्रल वही रहेगा, x का इंटीग्रल x²/2। अभी ऊपर कौन है बच्चों? 1 है। नीचे कौन है बच्चों? 3 है। तो पहले क्या डालने का मुझे? 1/2 माइनस 3/2। तो दिस इज 1/2 माइनस 9/2 मतलब -8/2 मतलब -4। तो यहां मैंने खाली अदला बदली किया लिमिट का, मेरा वैल्यू वही रह गया। वैल्यू ऑफ द एग्जाम्पल इज सेम, खाली प्लस वाले का माइनस हो गया, माइनस वाले का प्लस हो जाएगा। तो मुझे और एक प्रॉपर्टी कौन सा मिल गया? बहुत ही प्यारा सा सिंपल प्रॉपर्टी के इंटीग्रेशन fx dx अगर मैं a से b तक लेता हूं एंड इंटीग्रेशन सेम fx dx, फंक्शन बदलने का नहीं, फंक्शन सेम है, फ्रॉम b टू a लेता हूं तो ये क्या होता है? खाली इक्वल तो रहता ही है लेकिन ये माइनस रहता है। समझ गए बच्चों? ये माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट। खाली क्या बदल जाता है? a से b, b से a, फंक्शन सेम, और बीच में साइन क्या आ गया? इसका वैल्यू सेम रहेगा, ओनली साइन विल बी डिफरेंट। समझ गए बच्चों? चलो, तो ये हमने प्रॉपर्टी भी देख लिया यहां। अभी आप बोलेंगे ये काहे को पढ़ाई करने का, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? तो सिंपल यूज मैं आपको बताता हूं, समझ गए, विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसका फिजिक्स में भी आपको बहुत यूज होता है, व्हेन यू डिराइव सर्टेन फॉर्मूले लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वहां इसका यूज होता है। ये चैप्टर्स पढ़ने के बाद अभी आप फिजिक्स का डेरिवेशन पढ़ो, वो आपको समझने में आसान रहेगा। अगर नहीं आता है मुझे कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विथ वन ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम फिजिक्स। समझ गए बच्चों? चलो, अभी इसका यूज में, सिंपल यूज में आपको बताता हूं। क्या यूज है? सपोज देयर इज अ फंक्शन, लेट अस से y इज इक्वल टू x² प्लस 1। तो हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं, बराबर है? कैसा ग्राफ आएगा? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x 0 रहेगा तभी y 1 रहेगा, एंड देन इट विल बी अ पैराबोलिक फंक्शन लाइक दिस। समझ गए? समझ गए? नाउ यहां 0 है ओरिजिन, लेट अस से यहां x इज इक्वल टू a, तो ये मैंने x इज इक्वल टू a का ऑर्डिनेट बताया, और यहां x इज इक्वल टू b। समझो, यहां x इज इक्वल टू 2, यहां इट इज इक्वल टू 5, लाइक दैट। तो यहां मुझे ऐसा ऑर्डिनेट मिल जाएगा, बराबर है बच्चों? नाउ इफ आई टेक इंटीग्रल y dx फ्रॉम a टू b, मतलब क्या मिल गया मुझे? इंटीग्रल y का मतलब क्या है? x² प्लस 1 dx, कहां से कहां तक? a से लेके b तक। तो इसका कुछ वैल्यू मिल जाएगा मेरे को, आंसर, सब नंबर मिल जाएगा, जैसा पहले हमें मिला था 4, 1/3 वगैरह, ऐसा कुछ मिला था। सो वॉट एवर दिस वैल्यू इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व। समझ गए बच्चों? ये जो पूरा एरिया आएगा ना, कहां से एरिया आएगा? ये
एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां x इज इक्वल टू a, यहां x इज इक्वल टू b, और ये कर्व क्या है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो ये जो शेडेड एरिया है दिस विल बी दिस वैल्यू। अभी मैं ए बी चेंज करेगा तो ये वैल्यू बदल जाएगा, एरिया भी बदल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन। सो व्हाट इज दिस एप्लीकेशन, एरिया अंडर द कर्व। बच्चों ये हमारे लिए किसने सब फाइंड आउट किया मालूम है, 400 इयर्स बैक सर आइजैक न्यूटन महाराज करके एक बड़े साइंटिस्ट हो गए, याद है ना आपको, फिजिक्स में देखा है, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल, याद है क्या। फिर न्यूटन महाराज ने हमें बताया कि लाइट, थियरी ऑफ लाइट क्या था, याद है फिजिक्स में। ये न्यूटन महाराज ने हमारे ऊपर बहुत कुछ एहसान किए हैं। उन्होंने ये पूरा कैलकुलस जो है, मतलब लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब हमारे मानव जाति को न्यूटन महाराज की देन है। उनको प्रणाम करो, न्यूटन महाराज थे, इसके लिए आज हमारे पास बहुत से बाकी के साइंस डेवलप हुए हैं। समझ गए। चलो, सी दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर्टीज। अभी 3 तो प्रॉपर्टी हमने देख लिया, बराबर है, 3 या 4 देख लिया हमने, याद है क्या। चलो, ये प्रॉपर्टी जो रेड में मैंने बताया, वीडियो फिर से देखो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समरी ऑफ प्रॉपर्टीज देगा एंड देन वी विल सॉल्व एग्जांपल्स ऑफ दोस प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों, थैंक यू।